Good morning students. In the previous video we had studied exercise 1.1 of mathematical logic. Now today we will study statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction, contingency. Now statement pattern. In that first one is statement pattern. So statement pattern means it is a proper combination of statement letters and connectives. So it is called as statement pattern, just like conjunction, disjunction, implication, negation. So all these things which we used. Now logical equivalence. Two statement patterns are said to be equivalent if their truth table are identical. Means truth table, for suppose we consider two statement pattern A and B, and in both the statements if we get truth table identical, then the equivalence is like this: A is equivalent to B. Now next, tautology. Tautology means the statement pattern whose truth value is true for all possible combination of truth values of its prime components is called a tautology. Means if you find table, if you form truth table for any statements, and in the last entry if you got all T true, so then that pattern is tautology. And contradiction means what? In the last entry if you got all false, all F, then that is contradiction. And if in the last entry a statement pattern which is neither tautology nor contradiction, then it is known as contingency. So these are all the types of statements. Now based on this we will see the exercise. Now first one, exercise 1.2. Construct the truth table for each of the following statement pattern. We have to prepare truth table for each and every example. Now see the first one. P implies Q and this bracket and Q, and this whole bracket implies P. So here two patterns are given, P and Q. So we will consider two. So P statements, P and Q. For P, T, T, F, F. And for Q, T, F, T, F. Now here we want P implies Q, so हम लेंगे P implies Q. Now implication में फर्स्ट ट्रू और सेकेंड फॉल्स है तभी आंसर फॉल्स मिलता है, अदरवाइज सभी ट्रू होते हैं. तो दिस इज ट्रू. नाउ फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स मीन्स दिस इज फॉल्स, अदर ऑल आर ट्रू. सो दिस इज P implies Q. नाउ अब हमें चाहिए P implies Q एंड Q. सो नेक्स्ट कॉलम आएगा P implies Q एंड Q. अब हमें इसका एंड इसके साथ लेना है. सो एंड में अगर एक भी हमें फॉल्स मिलता है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू. सो P implies Q एंड Q. इसको हम लिखेंगे T, T आएगा तो वो हो जाएगा T, F, 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 T, 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 और ये हो जाएगा F. नाउ नेक्स्ट इसका इम्प्लीकेशन हमें P के साथ लेना, तो नेक्स्ट कॉलम आएगा P implies Q एंड Q एंड दिस होल ब्रैकेट implies P. नाउ इसका इम्प्लीकेशन P के साथ, तो इम्प्लीकेशन में हमें फर्स्ट T और सेकेंड F अगर है तो ही F, अदरवाइज सब T. सो T, 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 F, T, ये भी T, T, F, ये आएगा F, 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 ये भी आएगा T. So T, T, F, T. So this is the truth table for this statement pattern. Now in this way, second one. So second one, PQ statement हम लिख देंगे T, T, F, F, Q के लिए T, F, T, F. Then उसके बाद negation Q we want. So negation Q, T है तो F, F है तो T, T है तो F, F है तो T. अब P एंड निगेशन Q. सो नेक्स्ट कॉलम बनेगा P एंड निगेशन Q. सो एंड में एक भी F है तो F आएगा, F एंड दिस इज T तो T, F, दिस इज F. एंड नाउ
इसका हमें डबल इम्प्लीकेशन लेना है P इम्प्लाइज Q के साथ, लेकिन पहले हम निकालेंगे P इम्प्लाइज Q. सो P इम्प्लाइज Q. सो T, this is F, this is T, this is also T. नाउ अब इसका और इसका हमें डबल इम्प्लीकेशन लेना है, यानी सपोज इसको कॉलम 1 और 2 बोलते हैं. सो 1 डबल इम्प्लाइज 2. सो इसमें T और FF ही T होते, बाकी सब F होते, ये सभी आएंगे F. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर सेकेंड वन. नाउ सी द थर्ड वन. P एंड Q डबल इम्प्लीकेशन Q और R. अब जब भी R आएगा थर्ड, तो हमें 4T 4F 8 स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे. P Q R. तो P में आएगा 4T और 4F. उसके बाद Q में 2T 2F 2T 2F और R में 1T 1F. इस तरीके से हमें लेना पड़ता है. जैसे कि 2 अगर है तो हम 2T 2F लेते हैं और TF TF. और अगर 3 स्टेटमेंट PQR है तो पहले P में लेना है 4T 4F, फिर 2T 2F 2T 2F और R में लेना है TF TF. इस तरीके से. अब हमें यहाँ पे पहले लेना है P एंड Q. सो एंड लेना है, तो एंड में अगर एक भी F होता है तो आंसर F, अदरवाइज ट्रू. सो ये T आएगा F F F F F एंड F. उसके बाद हमें Q और R का और लेना है. Q और R का और में फिर हम लेंगे, और में अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आएगा. ट्रू ट्रू ट्रू. यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ ट्रू ट्रू ट्रू, हियर फॉल्स. अब ये 2 ब्रैकेट हमने बना लिया. अब इनका हमें डबल इम्प्लीकेशन लेना है. सो सपोज 1 और 2 लेते हैं. सो 1 का डबल इम्प्लीकेशन 2 के साथ. डबल इम्प्लीकेशन में सेम वाले ही ट्रू होते हैं, बाकी अदरवाइज फॉल्स. सो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर थर्ड वन. नाउ इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस. सिर्फ याद रखना है PQ में हमें 4 ही स्टेटमेंट लेना है, TT FF TF TF. बट जब R आएगा तो हमें 8 स्टेटमेंट लेना है, 4T 4F. फिर उसके बाद Q के लिए 2T 2F और R के लिए 1T 1F. इस तरीके से हमें ट्रुथ टेबल बनाने हैं. नाउ हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस. मीन्स इसके लिए पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद निगेशन P एंड Q का कॉलम में जो एंट्रीज हमें मिलेंगी वही एंट्रीज हमें इसके कॉलम में मिलनी चाहिए, P और Q एंड निगेशन P के. तो हम ये सारे एंट्रीज पहले ट्रुथ टेबल में फाइंड करेंगे और फिर इसका कॉलम और इन सब का कॉलम एक जैसा आना चाहिए. सो दिस इज द proof for equivalence, logical equivalence. Now we'll see the first one. Now for this we will prepare the table. So only PQ are there. So PQ TT FF TF TF. Now negation P we want. So FF TT FF TT. Then negation P and Q. So negation P and Q. So negation P and Q. So first of all this and then this. So this is F F F F. Then P or Q. P or Q. P और Q में हमें सिर्फ ओनली T T T F F F. सो नाउ इसका अब इस एंट्री में हमें चारों F मिले हैं. अब हमें ये निकालना है. सो यहाँ लेंगे P और Q एंड निगेशन P. सो इसका और निगेशन P का हमें एंड लेना है. सो यहाँ पे आएगा F, इसका भी आएगा F,
Now this is TT. P or Q implies negation this. So for and TTT. So यहाँ पर भी आएगा T इसका और इसका and आएगा F. Now see this column and this column. FFTF FFTF. सो इसीलिए इक्विवेलेंस प्रूव हो जाता है, यानी हमें इक्विवेलेंस प्रूव करने में ये दो कॉलम, इसका कॉलम और राइट हैंड साइड के टेबल का कॉलम और लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट का कॉलम सेम मिलना चाहिए, तो इक्विवेलेंस प्रूव हो जाएगा. सेकेंड वन, negation of P or Q, then or negation P and Q equivalence to negation P. So P Q दो स्टेटमेंट है तो हमने P लिया Q, T T F F T F T F. फिर हमें पहले P और Q चाहिए था तो P और Q निकाला, और में हमें T T T होता है, T F T होता है, F T T F F F. उसके बाद इसका निगेशन यानी T F T F T F और F का T. फिर P का निगेशन हमने निकाला क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत है. सो T का F, T का F, F का T, F का T. उसके बाद हमें निगेशन ऑफ P का एंड लेना है Q के साथ. सो निगेशन P का एंड Q के साथ, सो F T होगा F. उसके बाद F F होगा F. उसके बाद T T T और T F F. सो इस तरीके से सेकंड बना. फर्स्ट और सेकंड का हमें और लेना है, तो फर्स्ट और सेकंड का और. सो एफ 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 टी टी होता है और टी एफ टी होता है. नाउ इसका इक्वलेंस निगेशन पी के साथ, तो निगेशन पी वाला कॉलम एफ एफ टी टी और इन दोनों का और, यानी 1 और 2 का और एफ एफ टी टी. सो इस तरीके से इक्वलेंस प्रूव होता है. नाउ वी विल सी the third question. Now in the third, examine whether each of the following statement pattern is a tautology or a contradiction or a contingency. मीन्स यहाँ पर भी हम इनकी ट्रुथ टेबल तैयार करेंगे, और जो लास्ट एंट्री रहेगी वो लास्ट एंट्री अगर सभी फॉल्स से मिलते हैं तो हम कॉन्ट्रडिक्शन लिखेंगे, सभी ट्रू अगर मिलते हैं तो टोटोलॉजी मिलेंगे, और नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स यानी कुछ ट्रू कुछ फॉल्स ऐसे रहेंगे तो हम लिखेंगे कॉन्टीजेंसी. सो देखते हैं फर्स्ट वन. सो P Q, फिर P एंड Q, फिर Q और P, एंड देन P एंड Q इम्प्लीकेशन Q और P. सो इतने कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे. सो T T F F T F T F. Now and F F F और लेना है Q और P, Q P का और. नाउ इन दोनों का इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन में फर्स्ट ट्रू सेकंड F है तो ही F, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं. ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज सब ट्रू. सो लास्ट कॉलम में सभी T मिलते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा टोटोलॉजी, बिकॉज लास्ट एंट्री सभी T है. इसी तरीके से सेकेंड है P इम्प्लाइज Q, इसका डबल इम्प्लीकेशन हमें लेना है निगेशन P और Q के साथ. तो P लिखेंगे T T F F, Q लिखेंगे T F T F. इन P इम्प्लाइज Q में T, ये F, बाकी सभी T होते हैं. निगेशन P आएगा F F T T, एंड निगेशन P का और चाहिए Q के साथ, निगेशन P का और Q के साथ. सो T F F का भी T, सॉरी F F का F, देन T T का T, T F का T. अब हमें इस कॉलम का इम्प्लीकेशन लेना है डबल इसके साथ. सो 1 डबल इम्प्लीकेशन 2.
1 और 2 का डबल इम्प्लीकेशन 2, यहाँ पर भी 2, ट्रू और ट्रू, यहाँ पर भी सभी ट्रू आ रहे हैं तो ये भी होगा टोटोलॉजी। सो इन दिस वे आपको ट्रुथ टेबल बनाने हैं और लास्ट एंट्री में अभी यहाँ हमें सब टी मिले हैं तो हमने टोटोलॉजी लिखा, सब एफ मिलते तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिखा होता, कुछ टी कुछ एफ होते तो हमने कॉन्टीजेंसी लिखा था। सो इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट हमने आज एग्जामाइन की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे।